Hello my dear student and all who are watching my video। तो आज हम एक नई टॉपिक लेके आपके सामने आया है इन माय चैनल टॉकिंग फिजिक्स विद पीआर सरकार। इन द प्रीवियस डे मैंने क्या किया था कि एरर एनालिसिस के बारे में चैनल में कहा था, डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखें तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए मेरा चैनल टॉकिंग फिजिक्स विद पीआर सरकार। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सो सिग्निफिकेंट यानी जिसका कोई तात्पर्य है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स यानी अंक संख्या। तो क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर और ये हमें क्यों जरूरत है? व्हाई वी नीड the discussion about significant figure. So if we measure the length of a scale, length of a rod or any string by meter scale and 0 semi and the end of the rod is in between 5.3 and 5.4 semi, then what is the length? What is its length? We can say it 5.34 semi. We assume here the digits 5 and 3 is certain. 5 and 3 are certain, but this term is not certain. We assume that its length may be in between 5.3 to 5.4. So we say it 5.34 semi. But this and this digit, that is 5 and 3 are obvious, but 4 is not obvious. This is known as significant figures. Okay, this 5, 3, 4 all are known as significant figures. So the certain or accurate digits plus first uncertain digits together makes significant figures. Okay, the certain and the first uncertain digits together makes significant figures. Okay, so we can go with another example. More is the significant figure. If significant figures is 5.34 semi and if another person measure its 5.344 semi and another person measure 5.3447 semi, then which is be more precious? कौन सा सही की तरफ आगे है और कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है? तो we obviously said that this is more accurate because greater the significant number of significant more accurate greater the significant figure number, greater is accuracy or precision. Okay, so to measure any things accurately we need significant figures. Now we go with some rule of significant figures. We go with some rules with significant figures. So rules of significant figures लिख लीजिए। Rules, first of all,
एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। कोई भी डिजिट हो, अगर वो जीरो नहीं होता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 4, 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज 2। अगर 4, 5, 3, 7, 2, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। ओके, समझ में आ गया। नंबर 2, द जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स are significant. The zeros between non-zero digits. Suppose a number is 505. So here the number of significant figure is number of significant figure equal to 3. 5704. Number of significant figure is 4. Okay, so every non-zero digit is significant. The zeros between non-zero digits are significant. Next we go with third, the leading zero. Okay, इसको हम पहुंच देते हैं। नंबर 3 को यहां लिखते हैं, द लीडिंग जीरो of a number अगर वो लेस देन 0, लेस देन 1 हुआ, so the leading zeros of a number, leading zeros of a number just write to the non-zero digit are not significant. इसका मतलब क्या है? इफ हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका वैल्यू 1 से कम हो, तो सपोज 0.0045, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1, सो द लीडिंग जीरोज ऑफ द लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट होगा, सॉरी, लेफ्ट साइड टू द नॉन जीरो डिजिट्स और राइट टू द डेसिमल पॉइंट। ओके, ये दो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर ये हम नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 2, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट नहीं है, अनसिग्निफिकेंट है। लेकिन वो जो नंबर है वो 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1। ओके, जस्ट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट यही अगर डेसिमल, यही अगर ट्रेलिंग जीरो हुआ तो क्या होगा? द ट्रेलिंग जीरो without decimal point trailing zero without decimal point are not significant. So the trailing zeros without decimal points, suppose हम एक ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 7500, देखिए यहाँ पर 7500, अगर इसको हम विचार करें तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो यानी जो जीरो नंबर के बाद में आते हैं, तो यहाँ पर जो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये दो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर भी
जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितना होगा 2 होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2। ओके, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ओके, द ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट व्हाट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन दिस। अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो इफ दिस इज 7.500, देन फॉर दिस केस द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 2 3 4। यही डिफरेंस है एक डेसिमल और बिना डेसिमल की डिजिट नंबर में। ओके, सो द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट द ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। ओके, दैट इज 4.350। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होगा अगर डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 3 4, दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 4 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर दोनों रूल हमने बता दिए, विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, तो ये पॉइंट कर लीजिएगा 4 और 5। इसके बाद जो हुआ वो है कि पावर ऑफ 10, सॉरी 4 5, ये हो गया 6। पावर ऑफ 10 आर irrelevant in significant figure problem। इसका मतलब क्या है, अगर कोई हम एग्जांपल लेते हैं कि 4.5 इंटू 10 क्यूब, और हमको पूछता है क्वेश्चन में कि इस जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो 10 का जो पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। ओके, सिंपल हमको ये पार्ट देखने हैं विदाउट पावर पार्ट। सो हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। सो इसका भी इस टोटल होल नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। इसका एक और भी कॉन्वेनियंस या कि सुविधा है जो हम आपको अभी बताएंगे। और 7 नंबर जो है वो है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर the number of significant figures are same in every units। यूनिट कोई भी हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम। ये रूल है, लेकिन इसका एक इनकॉन्वीनियंस भी है। क्या है देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.30 सेंटीमीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बोलिए। क्योंकि डेसिमल पॉइंट है बिटवीन, सो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ओके, समझ में आ गया। ओके, बट इफ वी ट्रांसफर दिस सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, देन व्हाट इज वी कैन गेट मिलीमीटर, यानी सॉरी, इफ दिस इज 2.30 मीटर, इसको मीटर कहते हैं, 2.30 मीटर। अगर इसको हम मिलीमीटर में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा,
जिसको होगा 230 मिलीमीटर। बट हेयर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये 0 इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा। ये रूल नहीं भाई, नहीं, ये रूल फॉल्स साबित हो गया यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये मीटर में है, मिलीमीटर में है, बट हेयर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, बट हेयर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। इसके लिए ऑल नंबर को 10 की पावर में लिखना चाहिए। टू रिमूव दिस कॉन्वीनियंस वी शुड राइट एवरी नंबर इन द पावर ऑफ 10। व्हाट इज दैट? इज इफ वी से इट 2.30 इंटू 10 10 टू द पावर 0, और नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, और अगर इसको हम लिखते हैं कि 2.30 इंटू 10 स्क्वायर, देन इस वैल्यू विल बी सेम। ये होगा मीटर में, ये होगा मिलीमीटर में। तो अब देखिए, यहीं पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहीं पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो ऐसे मीटर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, और मिलीमीटर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। सो वी शुड राइट एवरी नंबर व्हेन वी चेंज यूनिट इन द फॉर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, अदरवाइज वी शुड डू मिस्टेक इन आवर प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ गया? सो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल इन सिग्निफिकेंट फिगर में जानेंगे। सो रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर जिस डिजिट को हम मेजर करते हैं, अगर उसका हम सम निकलते हैं और डिफरेंस निकलते हैं, तो हमको देखना चाहिए द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द डेसिमल पॉइंट, देन द रिजल्ट विल फॉलोज द सेम। इसका मतलब क्या है? सपोज we add 4.5 plus 3.85. Okay, what we can get? 4.5, that is 50, and 3.85. So 5, 8.35. We can get 8.35. 8.35. मगर यहाँ पर ये छोटा सा मिस्टेक हो गया है, छोटा सा मिस्टेक। अगर हम इसको 8.35 लिख देते हैं तो ये भूल हो जाएगा। क्यों? फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो डेसिमल के बाद जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंस इज हियर इज ओनली 5, दैट इज 1। सो द आंसर, इन आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। अगर हम इसको एक डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 8.3 को 4 लिख दी फॉर राउंड ऑफ। ओके, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। इसका भी रूल हम बोलेंगे। तो ये होगा राइट आंसर। अगर 8.35 हमने लिख दिया तो वो भूल हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही है। पर if we take the multiplication or division, in this case the result will be the same as list in which least number of significant figures, not after the decimal but the whole figure. If we write 6.25 divided by 5, 6.25 divided by 5. So यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? यहाँ पे डेसिमल के बाद नहीं देखना है, टोटल देखना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो 6.25 में सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और या तो 1 ही है। तो कौन किसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? ये। तो जो आंसर आएगा ना उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1।
सो इफ 6.25 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस किया 1, ये डेसिमल यह होगा, 2 नंबर है 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 5 25. So we can get 1.25. So we can get 1.25. बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 हो जाता है. सो फॉर राइट if we write right number of significant figures, ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है one digit significant figure, that is it is equal to only 1 in significant figure, because 5 is number of significant figure is least number of significant figure is 1, so the answer will be 1. ओके, इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वी हैव टू concentrate that the least number of decimal point in the measured value and the result will be same. And for multiplication or division we have to go with least number of significant figures but not in the decimal, total. Okay, let us do with some numericals. Suppose a wire has resistance 10.845 ohm and current, the value of current is 3.23 ampere, and if we multiply them V equal to IR Ohm's law, then we can get 35.02935 volt. Okay, so अगर हम इसको बोले द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो वी नो V is the product of current and resistance. So here we apply the rule of multiplication or division. So the least number of significant figures, here number of significant figures कितना है 1 2 3 4 5 and here 1 2 3. So in answer we should go with 3 number of significant figures. So if we go with 3 number of significant figures, we can do 35.0 volt, because after decimal 3 number of significant figures, that is decimal point के बाद अगर लेते हैं तो ये 0 significant figure में काउंट हो जाएगा. ओके, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होता तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा, बट 35 है, ग्रेटर देन 1, सो 1 2 3, सो द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर इज 35.0 volt. In this way we can solve another problem कि एक क्यूब का जो लेंथ है वो बोला है कि 1.2 into 10 to the power minus 2 meter. What is its volume in significant figure? Then volume equal to L cube. For cube all the length are same, so volume equal to L cube, that is 1.2 into 10 to the power minus 2 to the power cube, which we can get 1.728 into 10 to the power minus 6 meter cube. Now what is the significant figure? यही सम भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं, टोटल का. तो क्या होगा ना, we earlier said that the power of 10 is not included in the problem in significant figures, so the number of significant figures is only 2, so we can go with only 2 significant figures, that is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter cube. But we can round up it if this will be, if यही प्रॉब्लम का आंसर अगर होता कि 1.768 into 10 to the power minus 6, then we shall break up with this point to get 2 significant figures. But as the drop of digit, इसको कहते हैं ड्रॉप ऑफ डिजिट और इसको कहता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट.
अगर ड्रॉप ऑफ डिजिट के जो पहले डिजिट जिस जिस जिसमें हम वो काट ऑफ करते हैं, तो अगर वो ऑड है तो इसके साथ +1 हो जाएगा, और अगर ये इवन होता है तो वही रहेगा जस्ट काट आउट। सो ये अगर ऑड है और यहाँ पर 6 से ग्रेटर देन 5 है, सो देन आंसर विल बी 1.8 इंटू 10⁻⁻6। इसको राउंड ऑफ डिजिट कहते हैं। अगर किसी भी राउंड ऑफ का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को हम ब्रेक करते हैं, सपोज 1.389, इसको हम 2 डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमको 2 डेसिमल पॉइंट में लिखना होगा 1.38, बट 2 डेसिमल पॉइंट मीन्स 8 के बाद ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर जो ड्रॉप ऑफ डिजिट है वो अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो, और उसके पहले डिजिट इवन हुआ, गौर से सुनिए, इवन हुआ तो वो अनचेंज ही रहेगा, 1.38 ही होगा। मगर अगर ये 5 हो जाता है और सपोज 1.33 होता है, तो वो आंसर होगा इसके साथ +1, दैट इज 4। तो अगर इवन हुआ तो वही रहेगा, अगर ऑड हुआ तो इसके साथ 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, इट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड and it is remains unchanged if it is 0, if it is even. What about if this is 5? Lecture. So सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग आज डिस्कशन किया है। नेक्स्ट डे वी विल गो विथ हाउ टू राइट डायमेंशन एंड होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब। मेरा फेसबुक पेज भी है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।